Good morning, students. Students, once again, I am here with the topic excretion. Students, as we discussed in the previous topic, that what is the function of kidney and what is the functional unit of the kidney, and I told you that nephron is the functional unit of the kidney. So, I just want to recall this topic before moving forward because it will help you to understand the next topic, how the urine formation takes place inside the kidney. Now, students, as you know that nephron is the basic functional unit, and a nephron is a tubular part, and it has basically three parts. Okay, the first one is the first one part is called Bowman capsule. Then it leads into a long tube which is called Henle's loop, and the Henle's loop is finally opens into collecting duct. Okay, so once again I am going to tell you that what is Bowman's capsule. If you will observe here, so I am trying to draw the diagram. Actually, what is Bowman's capsule? So if you will see that it's a double walled, uh, it's a double walled like this cup shape structure. You are regularly observing two walls here. ठीक है, double walled cup shape structure is called Bowman's capsule, and it contains a network of blood capillaries. Suppose these are the blood capillaries and these are forming this kind of structure in between. ठीक है, this structure is called as basically glomerulus. ठीक है, and glomerulus is basically the network of the blood capillaries, and its main function is filtration of blood. ठीक है, now after that you are observing here. ठीक है, the nephron leads into a long tubular, highly coiled tubular structure, and this tubular structure is called as basically this tubular structure has various parts. And if you will observe here, now from here this initial part is going to be arise. This is called proximal convoluted tubule, or PCT. Then it is leading into a U-shaped structure. This you are observing there, a U-shaped structure is going to be formed, and this U-shaped structure is called loop of Henle. ठीक है, and it has two limbs, one which is coming down and one which is going up. The loop which is coming down is called as descending limb, and the loop which is going up is called ascending limb. ठीक है, similarly you are observing once again a highly coiled structure is here. ठीक है, this highly coiled structure is called as DCT, distal convoluted tubule. ठीक है, now after distal convoluted tubule you are observing here, this is a long duct which is called collecting duct. This duct is opening into the collecting duct, which finally collects the urine. So actually what happens, the impure blood comes into the Bowman's capsule, into the glomerulus. The impure blood gets filtrate, and the filtrate passes into the PCT, and from PCT it passes into the loop of Henle. In basically in long convoluted tubule, what is going on, the after the filtration of the blood, there are certain essential things which are present in the filtrate. ठीक है, these things are reabsorbed inside the loop of Henle, and finally the waste product, ठीक है, in the form of urine is released into the collecting duct. From it passes into the uh, next ureters or some other structures like urinary bladder, and from urethra it moves out. So today we are going to discuss the same topic, how what is the mechanism behind it. Okay, how the urine formation takes place. This is the main concept which I want to discuss with you. Okay, so this is a topic for formation of urine. The purpose of the urine is to filter out waste product from the blood. एक्चुअली यूरिन बनने का जो मेन मकसद है, वो आपकी बॉडी में बनने वाले जितने भी मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना. ठीक है, द नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनीज. दस किडनीज आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. तो बेसिकली हमारी बॉडी में जब भी लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, तो उनमें कई सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब होता है ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनमें नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो इनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे, तो दीज आर टॉक्सिक एंड दीज कैन हार्म योर बॉडी, और दीज कैन लीड टू द डेथ टू. ठीक है, तो इनको किडनी से होकर के बाहर निकाला जाता है. किडनी इनका फिल्ट्रेशन करती है ब्लड से. सो दैट्स वाई द किडनीज आर द फिल्ट्रेशन यूनिट इन आवर बॉडी. Now each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shape and tube that collects the filtered urine. As I mentioned you कि आपके किडनी में कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन में डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल में कैपिलरीज का क्लस्टर होता है जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होकर के जो फिल्टरेट होता है उसे यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है.
ईट किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स। तो हर एक किडनी के पास काफ़ी लार्ज नंबर में फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग विद द ट्यूब। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपका जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेट तैयार होता है और ये आपका लॉन्ग ट्यूब में पास होता है। लेकिन इस ट्यूब में जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है, यानी कि जो यूरिन है, इस यूरिन में अभी कई सारे एसेंशियल चीज़ें हैं, लाइक ग्लूकोज है, लाइक अमीनो एसिड है, और कई सारे मिनरल्स वगैरह हैं। तो इनका रीअब्जॉर्प्शन करना जरूरी है, नहीं तो ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे। सो दीज आर रीअब्जॉर्ब्ड इन दिस लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज इन द एक्सक्रीटेड। तो ये रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है और उसमें कितना ज़्यादा वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वेस्ट कम है तो वेस्ट क्या होगा, फिर ज़्यादा इसमें और ज़्यादा क्या होगा, रिलीज इसके थ्रू होगा। ठीक है, द यूरिन फॉर्मेशन इन ईच किडनी एंटर्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। एक्चुअली अगर आपसे डिटेल में कहा जाए तो यूरिन फॉर्मेशन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए तो यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं देयर आर 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन। पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका होता है ग्लोमेरुलस में। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। इसको बहुत महीन फिल्ट्रेशन होता है, बहुत बारीकी से फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें ब्लड्स की जो सेल्स हैं वो तो फिल्टर नहीं होती, खाली जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वही फिल्टर होता है, तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद होता है क्या, रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो आपका लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो इसको रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। फाइनली जो आपका यूरिन बनता है उसको सीक्रेट कर दिया जाता है, तो उसको सिक्रेशन बोलते हैं। तो देयर आर 3 स्टेप्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विच टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। सेकंड, रीएब्जॉर्प्शन इट टेक्स प्लेस इन द लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड मतलब बहुत घूमी हुई जो ट्यूब है, जिसको जो कि आपका पीसीटी भी पार्ट है उसका, लूप ऑफ हेनले भी उसका पार्ट है, डीसीटी भी उसका पार्ट है, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा होता है सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होता है, जो भी यूरिन फॉर्मेशन है ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ दी जाती है, और फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इट पासेस इनटू द यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर इट इज़ टेम्परेली स्टोर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड आफ्टर दैट द यूरिनरी ब्लैडर ये यूरेथ्रा से बाहर रिलीज कर दी जाती है। दिस इज इंक्लूडेड इन द सीक्रेशन प्रोसेस। सो आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ। अलॉन्ग विद इट देर इज ए एसोसिएटेड टर्म। आपने कभी कभी सुना होगा कि हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं किडनी फेलियर। तो इन सच कंडीशन when the kidneys are not working or they are not filtering the blood and not producing urine properly, तो इन सच कंडीशन तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपकी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जो विच कैन हार्म योर बॉडी और वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो किडनी फेलियर की कंडीशन में वी कैन गो थ्रू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस या सिंपली जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं, या आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। अब ना व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस और व्हाट इज़ डायलिसिस, एक्चुअल में होता क्या है, इसमें मैं आपको कहानी पूरी समझाऊँ। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसीजर यूज इन द आर्टिफिशियल किडनी टू रिप्लेस ए नॉन फंक्शन और ए डैमेज किडनी। तो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस एक प्रोसीजर है जब आपका किडनी फेलियर हो जाता है, या आपकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, या किसी की रीजन से डैमेज हो जा रही है, तब आपका डायलिसिस यूज में लाया जाता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस द ब्लड ऑफ पेशेंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब डिप्ड इनटू द टैंक कंटेनिंग डायलाइजिंग सॉल्यूशन हैविंग द सेम आयनिक कंसंट्रेशन एज प्लाज्मा। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड भर देते हैं, और उस फ्लूइड का कंसंट्रेशन सेम वैसा रहेगा जैसे आपका नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा का। यानी ब्लड में आपने पढ़ा था, ब्लड का कंपोजिशन जब हमने पढ़ा था, ब्लड के 2 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा में जो है वाटर है, सॉल्ट है, मिनरल्स हैं, जो भी कंसंट्रेशन आपका प्लाज्मा होगा सेम कंसंट्रेशन आपका किसका होगा, उस डायलाइजिंग फ्लूइड का होगा, जो कि कंटेनर में भरा हुआ है। अब आपसे क्या किया जाएगा, आपकी जो पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी के वेन्स को प्रिक किया जाएगा, और उस प्रिक करने के बाद उसको एक ट्यूब से जोड़ा जाएगा, और वो ट्यूब बनी होगी सेल्यूलोज की बनी हुई है, और उस ट्यूब को इमर्ज करा देंगे, डुबा देंगे किसमें, उस कंटेनर में डुबाया जाएगा, जिस कंटेनर में क्या है आपका प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए अब जो सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है, इट विल एक्ट लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब देखिए कंसंट्रेशन जो ह्यूमन ब्लड में है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ज़्यादा होगा, और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा लाइक जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसमें ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन नील होगा, ज़ीरो होगा। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ से डिफ्यूज़ होना स्टार्ट होंगे आपके ब्लड से, और कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है आपका कौन, जो ट्यूब है, क्योंकि ट्यूब खुला तो छोड़ेंगे नहीं उसमें, तो ट्यूब को खाली इमर्ज करके निकाल दिया जाएगा उससे बाहर। तो उससे क्या होगा, जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेज होंगे वो डिफ्यूज़ इन हो जाएंगे कहाँ,
वो क्लीन हो जाएंगे और वो आपके प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और जो ब्लड हो जाएगा वो आपका क्लीन हो जाएगा, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस उससे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और दोबारा से बैक उसे किसी दूसरी वेन में ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका डायलिसिस की प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ इनफ फॉर टुडे। ठीक है, काइंडली रिवाइज योर टॉपिक, एंड इफ़ यू विल फील एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। ठीक है, वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल डिस्कस how the excretion takes place in the plants too. Till then, thank you and bye.